Dear students, good morning. This is Durgesh Pandey. Students, in my previous class, I had discussed about the critical analysis of Mahabharata with the help of famous archaeologist and famous Sanskrit scholar V.S. Sukthankara. V.S. Sukthankara tried to critically analyze the things which happened during the early society in Mahabharata. During the early society in Mahabharata, students, we had seen there were different types of evil deeds in the society. जैसे समाज में बहुत सारी इविल डीड्स थी, बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, जैसे बड़े बुजुर्गों के सामने किसी स्त्री का चीरहरण होना, ये समाज में सबसे बड़ी बुराई थी और बड़ा कोई भी बुजुर्ग उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा था। फिर उसके बाद देखा गया कि अपने उस अपमान का बदला जो है किस प्रकार से पांडवों ने कौरवों से लिया। नाउ स्टूडेंट्स, today we will discuss about the dynasty. In this dynasty we will talk about the transfer of property. Dynasty in this dynasty we will talk about the transfer of property. Students, there are two types of transfer of property. First, the peoples were the patrilineal system and the society were the matrilineal system. There were two types of society during that time. First, there were patrilineal and second one matrilineal. The transfer of property, there are two types of in the society that time. First, that is patrilineal system, and second is matrilineal system. ये जो व्यवस्था थी ये पितृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक, matrilineal system. Patrilineal and matrilineal, these two kinds of society were there. In the patrilineal, the property transferred to their parents in the next generation. यानी कि यहाँ पर जो सत्ता का ट्रांसफर होगा, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा पिता से और उसके बेटे के पास, उसके बेटे से उसके बेटे के पास, यानी कि फादर आफ्टर हिज सन, then next son, next. It's continuous in patrilineal, but in matrilineal some places we had seen the system of matrilineal. If we will talk about the Satavahan dynasty, there we had seen in that society there was matrilineal system. And also during the Gupta period we had seen there. During the Gupta period we had seen there the Prabhavati Gupta, who was the daughter of Samudragupta. We had seen there
Prabhavati Gupta married to the Wakatak king. Wakatak king, the name of that king was Rudrasen. After that, in Gupta dynasty, we had seen there were a empress. The name of that empress was Prabhavati Gupta, who married the Wakatak king, who married with Wakatak king Rudrasen. After the death of Rudrasen, Prabhavati Gupta ascended the throne. Prabhavati Gupta ascended the throne because her son was too small. They can't handle the whole kingdom. They can't handle the whole kingdom. So Prabhavati Gupta thought that she will able to ascend the throne. नहीं तो प्रभावती रुद्रसेन के भाई कोई बैठे गद्दी पर, नहीं तो रुद्रसेन की कोई और बैठा। तो यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें पैटर्लिनी सिस्टम चलता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी पुरुष ही शासक बन सकता है। अगर हम क्रिटिकली एनालिसिस करें महाभारत की तो आफ्टर द डेथ ऑफ पांडव धृतराष्ट्र became the king. Dhritarashtra became the king. The king. अगर देखना चाहिए था, अगर मैटरलिनी सिस्टम होता तो क्या होता इसमें, पांडव की डेथ के बाद कुंती बनती, लेकिन कुंती नहीं बनी। यहां पर कौन बना, पांडव की डेथ हुई तो इनके भाई धृतराष्ट्र बने। अब धृतराष्ट्र के बाद की अगर स्टोरी हम देखेंगे तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किसके हाथ में सत्ता जाए, इसी के कारण युद्ध का कारण, यही युद्ध का कारण बना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट, इफ अर्लियर देयर वाज पांडव वाज किंग, देन द फर्स्ट राइट दैट वाज द टोटल power transferred to the son of Pandav in the patrilineal system. But the reason of the war was that the transfer of property. Students, property transfer first time to lady in the history, if we had seen there, to the प्रभावती गुप्ता। अगर हम इतिहास में देखें तो पहली बार जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था वो किसके हाथ में हुआ था, प्रभावती गुप्ता, ये फर्स्ट लेडी थी। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट दैट रूल्स ऑफ मैरिजेस और टाइप्स ऑफ मैरिजेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस? टाइप्स ऑफ मैरिजेस, types of marriages. There are 8 types of marriages, students. There are 8 types of marriage. But in all 8, 4 were very important, which were very popular during that time. First is endogamy, second is exogamy, third is polyandry, and fourth one is that was polygamy. Polygamy.
These four kinds of marriages were very popular during that time. According to Manusmriti, when the Manusmriti compiled between the 200 BCE to 200 CE, students, because the society run through the Dharma Shastra during that time. The society run through the Dharma Shastra, and Manusmriti was much more important during that time. Manusmriti was very popular and it was much more important during that time. Manusmriti composed during the 200 BC to 200 CE. Manusmriti composed or compiled Manusmriti compiled during 200 BC to 200 CE. 200 CE. Students, you all were aware about the BC and CE, before Common Era and Common Era. Students, as you know, the birth of Jesus Christ was the time is during the 4th century. जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो 4th सेंचुरी में हुआ था, 4वीं शताब्दी में हुआ था. उसके बाद से ग्रेगोरियन कैलेंडर हुआ, जो आज का कैलेंडर है जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं. ग्रेगोरियन कैलेंडर से उत्पत्ति हुई. अब इसमें क्या था, तो उसमें क्योंकि जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे और जो कैलेंडर ओरिजिनेट हुआ था उसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर. तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके ऊपर बेस्ड हो गया, जन्म से. यानी कि उस समय इन द 4th century, ड्यूरिंग द 4th century, दैट इरा इज काउंट एज द जीरो. उस समय उसको काउंट जीरो कर लिया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर को कह दिया गया कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इट रन्स एज AD एंड आफ्टर द बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इट वाज नोन एज BC. तो इसमें क्या हुआ कि BC और AD के बीच में झगड़े चलने लगे कि BC AD. अगर हम बोलते हैं कि किसी को भी इस तरीके की बात ना करनी हो, किसी के धर्म को महत्व मिल रही हो, तो अब क्या हुआ, इसमें नई चीज़ें ऐड हो गई, BCE जिसका मतलब हुआ बिफोर कॉमन ईरा, और AD की जगह पे क्या उपयोग होने लगा, CE जिसका मतलब हुआ कॉमन ईरा. यानी कि अब ये आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं होगा, फिर उसके बाद बिफोर द क्राइस्ट ईरा, यानी कि जीसस के जन्म से पहले की स्थिति नहीं होगी. इसको पढ़ा गया बिफोर कॉमन ईरा, उसको कॉमन मान लिया गया, और इसको बिफोर कॉमन ईरा पढ़ा गया, इसको कॉमन ईरा पढ़ा गया. स्टूडेंट्स, मनुस्मृति compiled during the 200 BC to 200 CE. In Manusmriti, for marriages, there is many theories were there. इसमें गोत्र सिस्टम अपनाया गया. आप सभी लोग देखते होंगे इन द हिंदू रिचुअल्स, इन द हिंदू कल्चर्स, गोत्र आर मेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट. तो गोत्र का बहुत ही महत्व है. फॉर मैरिजेज इन मनुस्मृति ब्लड रिलेशन कैन बी डिफर्ड. अगर आपको शादी करनी है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, blood relations can be deferred for marriage. Blood relation deferred for marriage. आप सभी लोगों ने देखा होगा हिंदू कल्चर्स में, when the peoples came
to watch the bridegroom. जब दूल्हे को देखने आते हैं तो फर्स्ट दे ask to their fathers what is the गोत्र of yours. पहले आपका गोत्र पूछा जाता है. If the गोत्र were same then there will can't be marriage. तो शादी नहीं हो सकती. गोत्र क्या होना चाहिए? डिफर होना चाहिए. इसके ढेरों सारे साइंटिफिक रीजन भी हैं. साइंटिफिक रीजन भी हैं इसके कि गोत्र सेम ना होना, इसका साइंटिफिक रीजन भी है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ब्राह्मण. अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण टेक्स्ट, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र describes 8 types of marriage. धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र defined 8 types of marriages. 8 types of marriages. Marriage. धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र defined 8 types of marriage. Among all 8, exogamy marriage were more suitable. If we will talk in all 8, then exogamy types of marriage were most suitable. Among all 8 types, exogamy were more suitable. More suitable. बेटा ये जो टाइप्स ऑफ मैरिज निकले, ये जो ब्लड रिलेशंस की बात हुई, इसमें जो ब्लड है उसमें 8 ऋषि या 7 ऋषियों की बात होती है. उन 7 ऋषियों के बेस पर, 7 ऋषियों के आधार पर ही गोत्र का निर्धारण होता है कि ये इस कुल के हैं, वो इस कुल के हैं, इस कुल की शादी इस कुल, यानी कि जो अगर सेम कुल है, सेम गोत्र है, तो उसमें मैरिज नहीं हो सकती थी. उसके लिए कुल और गोत्र का अलग होना जरूरी था. कुल और गोत्र का अलग होना जरूरी था स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस विच वर वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस. इंपॉर्टेंट टाइप्स of marriage. Students, first one is that is exogamy. First one is exogamy. एक्सोगैमी जिसको हम क्या बोलते हैं? बहिर्विवाह बोलते हैं. Exogamy refers to the marriage outside one's own gotra. Exogamy marriage refers to the marriage outside of its own gotra. Its own gotra. Students, the second one is endogamy. Endogamy
एक्सोगैमी मतलब बहिर्विवाह होता है जो अपने गोत्र से बाहर का होता था, और दूसरा था इंडोगैमी जो कि सगोत्र विवाह होता था, यानी कि सेम ही गोत्र में विवाह हो जाता था। इंडोगैमी सगोत्र refers to the one's own group marriage, refers to one's own group students. Next is polygamy. Polygamy means बहुपत्नी विवाह, polygamy. Polygamy, the types of marriage, polygamy जिसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। क्या बोलते हैं? बहुपत्नी, जहां पर एक व्यक्ति की एक से ज्यादा पत्नियां होती हों। इस प्रकार का जो विवाह था उसको पॉलीगैमी सिस्टम बोला गया। रिफर्स टू द मैरिज इन विच अ मैन हैज सेवरल वाइव्स, रिफर्स to a marriage of a man which have several wives. Next students, we will talk about the polyandry. Polyandry refers to the practice which a woman could have more than one husband. In polyandry, in this type of marriage, a woman have more than one husband. पॉलीएंड्री सिस्टम में था जिसको बहुपति विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह का सिस्टम जहां पर एक पत्नी के कई सारे पति हों। हम महाभारत में पॉलीएंड्री सिस्टम को देखें, पॉलीगैमी सिस्टम को भी देखें, दोनों सिस्टम को देखें। यहाँ पर पॉलीगैमी हमने कहाँ देखा? विचित्रवीर हैड 2 wives, पांडव हैव 2 wives, बट द्रौपदी हैव 5 husbands. तो कहीं पर हमने पॉलीगैमी को भी देखा और कहीं पर हमने पॉलीएंड्री को भी देखा। इस तरीके से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ मैरिजेस थी इसमें भी कहीं न कहीं डिफरेंसेस थे, सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुरीतियाँ थीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम आज इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट डे with the next topic. Thank you students, thank you very much.